This conference will now be recorded. Good morning, friends, ladies and gentlemen. We are starting in 5 minutes. Actually, few parents are joining in, so it will take us just 5 minutes more. And our apologies for the inconvenience, but few parents have requested that 5 minutes more. So we'll start exactly at 11:10. Thank you. और जो सवाल डाले मैंने वो सवाल पन्ने पे उतार देना। Good morning, ladies and gentlemen, friends. Namaskar. एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट की इस वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हम लोगों के लाइफ टाइम में आया है,
It is one of the rare situations which is more like a war. एक ऐसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें इनविजिबल एनिमी है, एक ऐसी सिचुएशन है, वार लाइक सिचुएशन वेयर देयर नो बुलेट्स, there are no bombs being thrown. At the same time, the enemy is all around. An invisible enemy, जिसके साथ आप लड़ नहीं सकते, जिसके साथ आपको अपने आप को सिर्फ प्रिवेंट करके रोका जा सकता है. So there's a time, when all these things which are being told, social distancing, to get out of the house if not required, all those factors which are being told are very, very important. Wearing of the masks, the hand hygiene. These are actually your armament. अगर हमारे पास हथियार हैं इस लड़ाई को लड़ने के, तो यही है. We are in a totally एक lockdown situation, हालांकि उसको orange and green category और green zones और red zones के accordingly उनको थोड़ा सा relax किया जा रहा है. But we all have to remember that the lockdown is being relaxed, which is more because of economic reasons and social reasons and political reasons and many things put together. But the disease is there, the virus is there. वायरस उसी तरह से virulent है और वायरस उसी तरह से अभी भी एक्टिव है. So we have to be very, very careful. हालांकि इंडिया में we have been relatively less affected. अगर आप compare करें with countries like US, like UK, like Spain, like Italy, the things are much, much worse over there. The US alone has got more than 1 million patients already, and expected number of deaths to be in lakhs. तो उस हिसाब से हम लोग, due to many factors, probably cross immunity or over whatever may be the scientific factor behind it, but we are relatively better off. At the same time, every single life lost is a life lost. Every single person who has suffered is the person suffered. So we have to be very careful that at the end of the day, epidemic will pass off. कोई भी pandemic जो होता है world में ऐसा नहीं होता है कि जो permanent रहा है. कोई वार ऐसी नहीं होती जो permanent रही है. So that all will pass off. But at the end of that, we do hope and we pray that all of us, we remain out of it. We don't get affected by it. Being careful is important because they say that jaan hai to jahan hai. This is what we have been talking about. But at the same time, we have to understand that the wheel of time is going to continue. जो समय का चक्र है वो तो घूमता रहेगा, वो बंद नहीं होगा. एंड कोविड इस वक्त हमारी लाइफ को टोटली इम्पैक्ट कर रहा है, बट कोविड इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आफ्टर द कोविड settled, which will get settled, there is no country where it hasn't got settled. It will slowly get settled down everywhere. Even if you look at the news of yesterday, they said after reaching a peak in somewhere in June, it will start settling down. So this is, are the predictions which are working. So it is going to settle down. So COVID is not the end of the world. The world is going to continue after that, and we have to make sure that we are prepared for the next level. First, at this stage, we have to start to learn to live with Corona, to live with COVID. That COVID is there, but by our preventive actions, by our taking cautions, by our being very careful, we are going to keep the COVID away from us. And that's probably the way we are going to save ourselves and the community and the country from the COVID. But after that,
once COVID goes away, our life is going to continue, and all the parents or their children who are the students who are there on the webinar today, you have chosen to think of taking medical as a career. I congratulate you for picking up this career. Being a doctor myself, I feel very proud that at this time or any other crisis which happens anytime in the world, it's the medical community which is the real warrior, real savior, in fact. Medical profession is one profession in which there are a lot of things which are important. One, of course, is the excellent career, no doubt about it. But along with the career, this is one thing where you are into doing the service. So we always say that this is a career with a soul. One career जिसमें आप अपना कैरियर भी बना रहे हो और आपने जो है एक जो आत्मसमर्पण और आत्मसेवा भी साथ साथ उसके साथ कर रहे हो. Thirdly, this is the only profession जिसके ऊपर कोई इकोनॉमी का इम्पैक्ट नहीं आता है. There have been times when there is recession, there have been time when there is इकोनॉमी अप जा रही है. आप सुनते रहते हैं कि अभी जो है आईटी का बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी कॉमर्स का अच्छा चल रहा है, अभी इसका चल रहा है. मगर मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा होता है कि जो हमेशा जो है एक इन डिमांड, इन ग्रोइंग डिमांड रहता है. इनफैक्ट जैसे जैसे वर्ल्ड की हेल्थ केयर सिचुएशन ऐसी होती जा रही है, वैसे वैसे जो है हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. एंड विद दैट डिमांड, healthcare is always going to be demand and increasing demand. And as a career, I think you have chosen to go for a very good career. I have seen the development of this industry for last 4 decades since I joined medical college in 1974. So 74 से 2020 तक I have seen about 46 years of how the industry has shaped up. And we find that over a period of time, it has been growing and growing and growing and growing without any, any visible impact in future also. इसका growth में कोई कमी आने वाली है. So opportunities within India, opportunities abroad, opportunities the whole world are going to continue in the same way. जैसे अभी है, आगे धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. वो उसमें कोई कमी आने के कुछ चांसेस कोई नहीं है. आज के एनवायरनमेंट में अगर कोविड के एनवायरनमेंट में देखें तो इट इज द नीड ऑफ द आवर. इनफैक्ट right up to the prime minister and armed forces, they all are all the time saying corona warriors, corona warriors. corona warrior में सबसे पहले जो है मेडिकल प्रोफेशनल का ही नाम आता है. So we are proud of this moment where our medical community is moving forward and doing so well. अब आपके पास जब टाइम है, ये सारा जो टाइम मिला है आपको इस बार डॉक्टर बनने के लिए, जो पहला कैरियर का स्टेप है वो है नीट एग्जाम. चाहे आप इंडिया में एमबीबीएस करें, चाहे आप अब्रॉड एमबीबीएस करना चाहें, नीट क्लियर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो ये जो आपको बस टाइम मिला है, प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नीट. अब नीट की डेट अनाउंस हो गई है. 26 जुलाई हैज बीन अनाउंस्ड एज द डेट फॉर द नीट. सो वी स्टिल हैव अबाउट 2 months टाइम टू गो. इन 2 महीने नीट के ऊपर आप पूरी मेहनत करिए. नीट इज बेसिकली नथिंग, इट इज सीबीएसई. तो हर एक सीबीएसई के चैप्टर को प्रॉपर पढ़िए, देखिए. उसमें खासकर जो चैप्टर समरी है, चैप्टर समरी को जरूर ध्यान से पढ़िए, बिकॉज कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो चैप्टर समरी में दिए होते हैं जो फाइन टेक्स्ट में नहीं नजर आते, कई बार वो मिस हो जाते हैं. और एग्जाम जब आता है तो उसमें से कई क्वेश्चन जो है वो समरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. पहला अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करें. पहला अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि नीट में बहुत अच्छा स्कोर करके आप किसी इंडियन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाए. तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस जो है वो नीट की काउंट होगी. अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट
कि नीट में 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. रिमेंबर, इट इज परसेंटाइल, इट इज नॉट परसेंटेज. परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो टॉप स्कोरर होगा नीट एग्जाम में, उसके स्कोर के बेस के ऊपर परसेंटेज निकाली जाएगी. तो 50 परसेंटाइल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इवन टू गो अब्रॉड. नीट की प्रिपरेशन में जहां तक पॉसिबल है हम भी आपकी मदद करेंगे. हम भी आपकी गाइडेंस की तैयारी कर रहे हैं. एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री मॉक नीट एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है. हर 2 वीक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट होगा टिल 26 जुलाई, जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं. उसके लिए हमारे काउंसलर से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. एग्जाम 10 to 1 कंडक्ट किया जाएगा. इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको समझनी है, आपका जो भी नॉलेज है, जो भी आप अपने नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 10 to 1 3 घंटे का टाइम मिलना है. No one is going to meet you. No one is going to come and understand you. What you do in those 3 hours, how you answer that answer in those 3 hours is going to determine how good you are. So अपनी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो एफर्ट है, सारा जो आप अपना उस पर करने जा रहे हैं, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि आप 10 से 1 के बीच में अपने टाइम में अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाएं. रिमेंबर, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग. तो अगर आप उसमें गेस वर्क से काम करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप बहुत सफर कर सकते हैं. मॉक नीट अपीयर करिए, उससे आपको पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, कौन से सब्जेक्ट में आपको और एफर्ट चाहिए. और अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि हम नीट मॉक करने जा रहे हैं और उसका टाइमिंग भी 10 to 1 रखा है, जो नॉर्मली नीट का टाइमिंग होता है. तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपना जो है तैयारी कर सकते हैं. यू कैन बी गेटिंग रेडी. और मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पहला जो एफर्ट है वो ये होना चाहिए कि आप इसमें नीट में अच्छा स्कोर, ताकि आप इन इंडियन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें. नीट का जो क्रैक करने का जो एक मेन गुर है, कीप प्रैक्टिसिंग. द मोर यू प्रैक्टिस, more you will do better. I am reminded of my entrance exam when I did the entrance exam for AFMC in 46 years back. उस वक्त भी एग्जाम को क्रैक करने का जो मेथोडोलॉजी था वही था कि कीप प्रैक्टिसिंग. हालांकि उस वक्त कंपटीशन यूज्ड टू बी इवन वेरी टफ बिकॉज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वर वेरी फ्यू, नंबर ऑफ सीट्स इन द कंट्री वर वेरी वेरी फ्यू. तो उस वक्त कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होता. मगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सीट्स हैं, सब कुछ है, so you have to do that. But questions comes if you don't get that excellent percentile, and when you find that you are not able to get into the best of Indian institutions, that is the time you have to start thinking whether we should go for a paid seat in a mediocre or average Indian college, or we should think of something else. अभी एक सिनेरियो कुछ ऐसा बन चुका है कि हमारे इंडियन कॉलेजेस में most of the colleges, irrespective of their location or standard, paid seats जो हैं they almost cost 1 crore and above. 5-5.5 साल का जो खर्चा है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास टच कर जाता है, which is very high by any standards. उस वजह से lot of parents and students they try to pick up institutions abroad, जहाँ पे खर्चा जो है 5 साल का खर्चा इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग फूड, 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो. इन रशिया देयर इज institutions where you can for 20 lakhs also,
The students who want to pick up places like Poland or something where maybe 50 lakhs, there may be students who want to go to Caribbean who maybe got 35 lakhs. So depending upon किस student की क्या choice है, किस student की क्या requirement है, ये expense जो है उतना ही कम हो जाता है. Second factor इसके साथ ये आ जाता है कि there are number of students who want to settle abroad after passing out. USA में सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद उनकी इस टाइप की चॉइसेस हैं. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो USMLE की साथ में तैयारी करवाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये डेस्टिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उनको शुरू से सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स बच्चों को जो है प्लान शुरू हो जाता है कि हम USMLE की तैयारी शुरू कर दें. USMLE जो है दैट इज यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम. ये एग्जाम जो है वो कंपलसरी होता है वहाँ पे जाने के लिए. तो जो जैसे हमारा लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है गुयाना में, उनका एक स्ट्रेंथ ही इस तरफ होती है कि बच्चों को उस तरफ के लिए USA के लिए तैयारी कराई जाए. इसी तरह जो बच्चे यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, उनकी चॉइस होती है कि हम पोलैंड के थ्रू एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पास आउट करें, यूरोपियन यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ के जाए. तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उस टाइम के ऊपर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम जो है यूनिवर्सिटी अब्रॉड कैसे चूज करें. 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप एक यूनिवर्सिटी कोई बाहर की चूज करते हैं जाने के लिए. पहली बात, वो यूनिवर्सिटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में मत ज्वाइन कर लीजिएगा जो मेडिकल काउंसिल की रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर आप वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करने के बारे में सोचेंगे और आपने ऐसी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जहां का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर रिकॉग्निशन लिस्ट में नाम नहीं है, तो वापस आके जो है आपके वो 5 साल जो आपने वहाँ पे पैसा और एफर्ट खर्च किया, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा. सेकेंडली, अगर आपको कोई बोलता है कि आप नीट के बिना आपको ज्वाइन करवा देते हैं, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नीट के बिना अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे और उसके बाद फिर से आप कोई मेडिकल काउंसिल की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा. पिछले साल कुछ बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिना नीट के वहाँ पे रशिया में ज्वाइन किए, तो रशियन हाई कमीशन जो है, जो इंडियन हाई कमीशन रशिया में, उनको रिपोर्ट करके अल्टीमेटली उन सब वहाँ पे बैठ के नीट पास करने की जरूरत पड़ रही है. तो वो एक आपका डिस्कम्फर्ट, एफर्ट, हैरेसमेंट, ये सारी चीजें जो है बाद में आपको बहुत तंग कर सकती हैं. तीसरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो USA में जाना चाहते हैं उसके थ्रू, USMLE के थ्रू, तो वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो वो USMLE के तो ये 3 चीजें जो हैं आप हमेशा स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करके उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए. चौथा जो आपका डिसीजन है वो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है कि आपका बजट कितना है. बिकॉज फैमिली बजट को देखते हुए मैंने आपको बताया कि 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन फॉर कंप्लीट कोर्स. ये जो मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ ये पूरे कोर्स का खर्चा है, जिसमें कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस और खाने का खर्चा और मेडिकल बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड हैं. इसके साथ साथ जो है जो बच्चे का एक मेडिकल इंश्योरेंस, ताकि वहाँ पे अगर बच्चे को कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े तो वो भी जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है. एक क्वेश्चन कई बार रेज होता है लैंग्वेज का. ये सारी इंस्टीट्यूशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करती हैं. हाँ, ये होता है कि जैसे लोग रशिया में ज्वाइन करते हैं तो रशिया में उनको फर्स्ट ईयर में रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि सेकंड ईयर में जाके जब वो पेशेंट के साथ डील करना चाहते हैं, जरूरत पड़ती है, तो पेशेंट जो है वो रशियन होते हैं, तो उनके साथ उनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है. कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहोगे कि अब इस बार जो कोविड की वजह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है.
सिचुएशन डेफिनेटली एक ऐसी है कि जिसकी वजह से सब कुछ डिले हो रहा है। नीट भी जैसे आपने देखा कि इस बार जो है 26 जुलाई को हो रहा है, दैट मीन्स अगस्त में कभी जो है इसका रिजल्ट निकलेगा और एडमिशंस होते होते सितंबर हो जाएंगे। दिस इज वेयर वी आर। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नॉर्मली सितंबर बैच की एडमिशन होती थी। इस बार दीज एडमिशंस आर लाइकली टू बी डिलेड टू अक्टूबर एंड नवंबर। तो सभी इंस्टीट्यूशन की जो प्लान है वो इसी हिसाब से है कि वो अक्टूबर नवंबर में अपने बैचेस को एडमिट करें। उसके बाद क्रिसमस वेकेशन के टाइम के ऊपर सिलेबस को मेकअप करके ताकि जनवरी तक जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाए, सो दैट उसका जो है इस लेवल पे पहुंच जाए ताकि वो जो है उसको कोर्स को प्रॉपरली अपना कर पाए उस जगह पे। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी का प्लान है। दूसरा, सभी यूनिवर्सिटीज एक इस हिसाब से सोच रहे हैं कि एडमिशंस को जो है, जो स्टूडेंट्स को बैचेस में लिया जाए, सो दैट एट एनी गिवन टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच इज लेस। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्लान है, जो वहाँ पे भी टीचिंग के टाइम के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारे को मेंटेन किया जा सके। अभी भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे, जो पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वहीं पे हैं और उनके एग्जाम, उनकी सारी जो एजुकेशन है वो एज पर शेड्यूल चल रही है, उसमें कोई चेंजेस ऐसे नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो कोविड से पहले यहाँ पे आ गए थे उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो किसी भी तरह का, किसी का जो पिछले बैचेस थे उनका डिसरप्शन नहीं हुआ है कहीं पे भी। इनफैक्ट अभी हमारी जो पिछले बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के साथ परसों ही डिस्कशन हुई थी। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिपैट्रिएशन का प्लान किया है, जिसमें वो बाहर जो लोग कुछ हैं उनको वापस लाने के लिए फ्लाइट्स वगैरह चला रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर ऑफ द ओपिनियन कि बच्चे वहाँ पे सेफ हैं, दे आर हैप्पियर देयर। यहाँ पे इस वक्त जो है उनको लेके आना, फिर वो क्वारंटाइन में भेजना, वो सारा जो है दैट प्रोबेबली इज नॉट द सेफर, इनफैक्ट दे आर सेफर देयर। सो दैट्स व्हाई द पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स से हमारी डिस्कशन हुई उनमें से कोई भी इस स्टेज के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं था कि हम बच्चों को वहाँ से मूव करें या ट्रैवल करवाएं, या risk of travel, risk of airport, risk of quarantine. So what I'm trying to say is that there is a level of comfort in which people are working over there. What we need to do right now is that we think about it, we think of the education, we think of what we want to do, we think of alternative. नीट की पूरी तैयारी करें, नीट को तैयारी करके, so that first objective should be score well in the NEET. But if that situation does not come, that we get in the prestigious institutions, then we think of what next. जितने लोग वहाँ पे पास आउट होके आते हैं उनको इंडिया में आके एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको पहले वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, अब उसको नेक्स्ट का नाम दिया जा रहा है, which is going to become compulsory for everyone passing out in the India also later on. और उस एग्जाम के बेस के ऊपर अभी वही एग्जाम जो है उसको नीट पीजी का एग्जाम भी कंसीडर किया जाएगा। सो आने के बाद बच्चे जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट के साथ इक्वलाइज करके पीजी के लिए ट्राई कर सकते हैं। पीजी मैट्रिक ऑफ कोर्स वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी और स्कोर करना पड़ेगा, और जब आप बच्चे वापस आएंगे तो हम उनकी, जैसे अभी नीट में हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त नेक्स्ट में भी हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन बिटवीन जब आप वेकेशन पे या यहाँ पे आते हैं, एस्ट्रॉन की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्ट्रॉन हॉस्पिटल हेल्थ केयर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने की कंसल्टेंसी करती है, आल्सो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी के ऊपर काम करती है। तो वी हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर देन 400 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, और 65 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो उसकी वजह से सभी अक्रॉस द इंडस्ट्री एस्ट्रॉन इज वेरी वेल कनेक्टेड, और हमारी कोशिश होती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप जब वेकेशन में आते हैं तो अगर आप कोई ऑब्जर्वरशिप करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो वी कैन हेल्प यू। और आने के बाद
डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट क्लिनिकल डिसिप्लिन में जाना चाहता है, टीचिंग में जाना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में जाना चाहता है, या हेल्थ केयर क्वालिटी के डिसिप्लिन में जाना चाहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टूडेंट क्या चूज करना चाहता है, हम उनको गाइड भी कर सकते हैं और हम उनकी प्लेसमेंट में मदद भी कर सकते हैं, बिकॉज ये फैक्टर होने की वजह से कि हमारी क्योंकि 400 से ज़्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और रही है, जिसमें मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री आर एसोसिएटेड। तो इसकी वजह से हमारा जो एक लिंक है, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं शुरू से, वो थ्रू आउट योर एजुकेशन रहता है, नॉट ओनली थ्रू आउट योर एजुकेशन, इवन आफ्टर यू पास आउट टिल योर प्लेसमेंट। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि परसों ही हमारी पेरेंट्स के साथ बात हो रही थी रिगार्डिंग देयर कमिंग ड्यूरिंग कोविड पीरियड और नॉट। इसी तरह जब स्टूडेंट वहाँ पे भी होते हैं तो उनके साथ जो है हम लोग रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि अगर वहाँ पे कोई तकलीफ हो तो जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं हम उनके साथ हेल्प कर पाते हैं। जो कोविड की सिचुएशन की हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज हम लोग डील कर रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त हम रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भेजना चाहे, इस साल हम चाइना की बात नहीं कर रहे, बिकॉज चाइना की सिचुएशन अभी बड़ी अनस्टेबल है। वी आर नॉट श्योर कि कैसे जो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ये सारा एनवायरनमेंट आने वाले साल में कैसा रहेगा। इट्स ए क्वेश्चन मार्क एज ए। सो इसलिए हम चाइना की कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं कर रहे। रशिया में Palm State University, Mary State University, Tver State University, Orenburg University, we are recommending. Guyana में Lincoln American University, University of Garage, Poland, Cyberjaya University, Malaysia, Mahesha University, Malaysia, Eastern European University, Georgia, Gulas University, Philippines, Caucasus University, Georgia, University of Mauritius, and Anna Medical College, Mauritius. These are the universities which we are talking about. इसको अगर आप कंट्री वाइज हम देखें तो कुछ जगह के ऊपर तो ऑलरेडी कोविड इज ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, जैसे मॉरिशस है। मॉरिशस में थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑन द वे टू रिकवरी। गुयाना अगेन इज relatively comfortable, the number of cases are very few. Malaysia has started settling down. रशिया में जो मेन कंसंट्रेशन ऑफ कोविड इज इन मॉस्को, और हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो मॉस्को से तकरीबन पेरिफेरी के ऊपर है। इनफैक्ट अगर हम रशिया का पूरा पैटर्न देखें तो 70% ऑफ केसेस आर इन मॉस्को एंड 30% are spread over the rest of the Russia. So places which we are talking of are relatively less impacted, और जहाँ तक उम्मीद का जो ग्लोबल जो पैटर्न चल रहा है उसमें हमें लग रहा है कि जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिंगापुर से अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एक स्टडी आई है उसके हिसाब से इट अपीयर्स दैट बाय जुलाई अगस्त थिंग्स शुड स्टार्ट सेटलिंग अक्रॉस द ग्लोब। उसी बेस के ऊपर इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 26 जुलाई को एग्जाम नीट का अनाउंस किया है, तो उन्होंने भी उन्हीं प्रेडिक्शंस को देखते हुए किया कि जून के बाद जो है इसका एक लो फेज आना शुरू हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाई द कंट्री इज विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम ऑन 26 ऑफ जुलाई। तो उसमें उम्मीद है कि जब तक हम अक्टूबर नवंबर एडमिशंस की बात कर रहे हैं तो बाई अक्टूबर नवंबर थिंग्स वुड बी सेटल्ड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी लिमिटेड हो, बिकॉज यूनिवर्सिटीज वांट टू फॉलो द पैटर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। एट एनी गिवन टाइम क्लासरूम अगर 60 का है तो उसमें जो है keep not more than 20 to 30 students, so that these safety factors are put into place. The seats are open. Anyone wants to block the seat, reserve the seat, they are most welcome. They can contact our counselor. In fact, our counselor जो है आपके साथ टच में रहेंगे. But in the meanwhile, आप अपने नीट के ऊपर ध्यान दीजिए, नीट की तैयारी करिए, और नीट में जो स्कोर आएंगे वो आपको डिटरमिन करेंगे कि whether you want to look for an Indian institution or you want to look for an institution abroad. और अगर आपने settle abroad होना है बाद में, that is your intent. Of course, even if you score well in NEET, then that is a solution. There are parents who have picked up Lincoln American University or one of these universities because
the intent is only to settle abroad. Their intent is not to come back. तो वो एक जो चॉइस होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन 3 चीजों पे डिपेंड करेगी, नीट के स्कोर के ऊपर, बजट के ऊपर, कंट्री प्रेफरेंस अगर आपकी कोई है, और चौथी बात ये कि अगर आप जो है कहीं पे बाहर सेटल होना चाहे तो दैट इज योर अल्टीमेट एम। तो ये चीजों को देखते हुए आपको अपने डिसीजन लेने हैं। So with this, I have tried to explain to you the whole process, what is happening across the globe now for MBBS admission this year, how it is going to progress, and what is going to happen. अगर आपके लिए मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई चीज आप और पूछना चाहते हैं, we are opening a chat box. उस chat box में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं. We will try to answer those questions. इस वेबिनार के बाद जो है हमारे जो काउंसलर हैं वो आपके टच में रहेंगे, और फर्दर कोई क्वेश्चन हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दोज क्वेश्चंस, एंड वी विल ट्राई टू answer you on those very questions at the best possible. In the meanwhile, all the best, God bless, and we do hope that you do very well in your NEET and in your careers. I'm sure that with that amount of time you have, you can probably do very, very well in these institutions. The eligibility criteria for getting admission in MBBS has been asked for. This is 10+2 with science, 50% score. As I said, that NEET percentile 50% is very important. That is what is required to be done. There is no entrance exam prior to joining MBBS in the university in Russia. You don't have to appear for any exam for prior to Russia. पोलैंड में अगर आप जाते हैं तो पोलैंड के लिए देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम व्हिच इज दिस ईयर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन. आगे वो एग्जाम हुआ करता था, बट दिस टाइम दैट एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन. द डेट्स फॉर व्हिच आर बीइंग announced right now. A question is regarding Ukraine. Yes, Ukraine can be considered, but somehow in the preference criteria we have found that Ukraine have been a little lower in the preference criteria. So if you need help in Ukraine, we can probably look into that. The marks, MCI screening exam is you can appear up to 3 times. ये जो MCI screening exam की हम बात कर रहे हैं, this was something which was being done till now. Last year, government announced that they will be conducting an exam called NEXT. Next exam की modalities आनी थी इस बार, but probably the ministry and everything has got busy with COVID. So अभी तक उसकी डिटेल आई नहीं है, मगर जो प्लान है वो आने वाले टाइम के ऊपर that next exam will become the main exam, और उसके बेस के ऊपर लोगों को नीट पीजी भी सेपरेट नहीं देना पड़ेगा. You get the registration of the Medical Council of India, and you also don't have to appear for NEET PG, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो है they will be conducted in the country. The question about marks required
The marks required are 50% in PCB. That's for the CBSE, PCB, 50% marks are required to go abroad. But along with that, 50 percentile is the cutoff. Last year, I think it was 134 was the percentile in which it was required. 134 was last year's this. The fee criteria for Ukraine, Nupur, I think it's about 18 lakhs is the cost at the Ukraine. But we'll give you the, Nupur will send you the details of the fee structure of all the universities for that, so that you can take your call. As far as registering for the Astron mock test, lost it. How can we register ourselves for Astron mock test? Our counselor will be in touch with you. You can register online and do it that way. The question is that if a student has completed its MBBS from USA, then also taking the next exam is compulsory. No, USA, if you have completed MBBS from USA, then you don't have to appear for the next exam. Scotland, we have no connections in Scotland, so we are not able to confirm. The medium of language in Poland is English. In Scotland, of course, you know, we are a partner to Aberdeen University. The University of Aberdeen, we are actually working on a lot of health-related courses. So in case, Tanishka, you are interested in Scotland in any of the courses in University of Aberdeen, you can please get in touch with us and we'll be able to guide you in that. See, if you have passed with good marks in Himanshi, this is a question from you that if you have passed with good marks in NEET, obviously, you know, University of Russia, they say the 50 percentile is the minimum cutoff. So if you have better percentage, obviously you can pick up a better university and go ahead with that. I have got a point from Salim regarding Ukraine, so we'll be, of course, in touch with you on that, and we'll take it forward. From our counselor will give you all the details of the individual. In fact, if any one of you has got any questions regarding individual university, after this, our counselor will be in touch with you, and they will be able to give you the complete detail about the individual universities where you are interested to talk about. In the interest of time, we will stick more to generic information over here, and the individual university information can be shared by your counselor of that particular country. So we have counselors, you know, who are connected with the various universities separately, so they'll be able to give you all the details in that. Question is, any MBBS proper student can again get admission in international university? Yes, can be done. There are a couple of students, you know, who picked up in other institutions and they dropped out and they wanted to start again. But again, the question is that NEET is compulsory. The NEET validity is important. Because NEET, once you appear for NEET, it is validity is 2 years. तो अगर किसी ने लास्ट ईयर नीट पास किया हुआ है 50 परसेंटाइल के ऊपर, वो इस साल अपीयर हो सकता है, इस साल एडमिशन ले सकता है, पर अगर उससे पहले का परसेंटाइल है तो उसकी जो है वैल्यू नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता. Not in England, but we have this Poland. So you can, in the Europe, the university where admission can be done is in Poland, and from Poland you can move on there. Of course, we have certain universities in England for other courses, but not for MBBS. We will give you that list of documents for MBBS abroad. In fact, help you with the whole visa process. In fact, इसका पूरा का पूरा जो system है, जो इस तरह से workout होता है कि हम एक बार रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद जो है लेटर ऑफ ऑफर कॉलेज से आता है, देन द वीजा प्रोसेस स्टार्ट,
and after the visa process starts, everything can be done. In fact, this year even some of the universities are considering कि visa process को सारे को complete करके initially education जो है वो online start कर दी जाए, और उसके बाद जो है जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है कंट्रीज में, they may open to start working toward the admission at that time. So visa process के जो साथ है, all this will start happening. Will MBBS start online? Yes, I just answered you that it may happen. And there's a question about Nepal. Nepal is okay, but we feel that, you know, if you are looking at international career, then moving to Poland or Lincoln American or even Philippines for that matter, they are better options than to, you know, move across further. The question about not clearing MCI in first attempt, I told you that there are 3 attempts which can be made for clearing the MCI. जैसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा तो नेक्स्ट में तो इवन इंडियन स्टूडेंट्स को भी वो ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपने पास कर भी लिया है तो नेक्स्ट टाइम यू कैन अपीयर अगेन टू इम्प्रूव योर स्कोर. जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाले टाइम के ऊपर होपफुली फ्रॉम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एक सिचुएशन जो आएगी वो सिचुएशन ये होगी कि नेक्स्ट के बेस के ऊपर आपको पोस्ट ग्रेजुएट सीट में एडमिशन मिलेंगी. तो अगर इंडियन स्टूडेंट भी जो है नेक्स्ट में अपीयर होता है और उसको अपनी चॉइस की या एक ढंग की सीट नहीं मिल पाती है और वो नेक्स्ट टाइम अगेन अपीयर करके अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहे तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट को मिलेगी. सो और नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, इट विल बी सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. Regarding paying abroad university fee from India, it is permitted, it is very legal, उसमें कोई हैसल नहीं है. आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, इनके जैसे ऑनलाइन पेमेंट होती है उस हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में भी कर सकते हैं. Education loan facility, yes, we can help you in getting the education loan, and you know, we'll you know, put across you to the banks which can help you in taking that institution. Visa interview for getting visa, इसमें कोई interview नहीं होता है. Visa is issued based upon the offer letter which comes from the university, and based upon that we can do. Medium of language in universities, it is English. जैसे मैंने बताया कि रशियन में इनको रशियन टीच जरूर की जाती है कि बाद में आपको जो है पेशेंट के साथ और जनरल कम्युनिटी के साथ रशियन में डील करना पड़ता है. तो फर्स्ट ईयर में रशियन पढ़ाई जाती है, मगर उस रशियन एजुकेशन के लिए आपको कोई सेपरेटली पे नहीं करना पड़ता. दैट्स पार्ट ऑफ द curriculum. क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन अब्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% नीट में और 50% पीसीबी में. ये एक यूएसएमएलई में ऐसा जो है कोई ऐसा नहीं होता है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं. जनरली हमारे लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी एटसेट्रा में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट को प्रिपरेशन कराई जाती है यूएसएमएलई के लिए, और फर्स्ट 2 स्टेजेस अटेम्प्ट की जाती हैं कि पास होने से पहले फर्स्ट 2 स्टेजेस क्लियर करवा दी जाए ताकि पास होने के बाद सिर्फ थर्ड स्टेज करने की उनकी रिक्वायरमेंट हो. और ये जो ट्रेनिंग यूएसएमएलई के लिए उनको दी जाती है, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. उसके लिए कोई उनको सेपरेट कोचिंग के लिए पे नहीं करना पड़ता है. इंडिया में हमने देखा है कि लोग बाद में जो बाहर जो अमेरिका जाने की प्लान करते हैं, कई बार पास होने के बाद 2-2, 3-3 साल कोचिंग लेते रहते हैं, स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन कोचिंग. सो उस तरह से उनका टोटल टाइम यूएसएम में जाते जाते 10-10 साल लग जाता है, जबकि आप यूएस अगर इन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो यू सेव प्रेशियस 3 to 4 years in reaching over there. नो, नीट में जो है आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर कोई नहीं देखा जाता, उसमें आपके टोटल परसेंटेज स्कोर के ऊपर ही देखा जाता है. आपकी जो है पूरी डिटेल उसके बारे में जो है जो एक्चुअल मार्किंग इन टोटलिटी है वो कंसिडर की जाती है. इंडिविजुअल मार्क्स के ऊपर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर नहीं देखा जाता. मलिका, आपने रिक्वायरमेंट दी है अबाउट ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. As I said, my counselor will get back with you in just after this and give you all the details.
कॉस्ट ऑफ USMLE एग्जाम, इसमें जो है कोई कॉस्ट नहीं होती है. इट इज जैसे जिसकी जो प्रिपरेशन सारी की सारी हम लोग जो कर रहे हैं वो इन इंस्टीट्यूशन के उसमें इंक्लूडेड होती है. जो USMLE को जो है एक फी पे करनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली पे फी विच यू हैव टू पे. तो वो जो है आपको जो कोचिंग फी हमारे यहाँ तरफ कोई नहीं. हालांकि हमारे इंडिया में अगर बैठ के आप बाद में प्रिपरेशन करते हैं तो लोग 5-5 लाख रुपए तक कोचिंग के चार्जेस ले लेते हैं, which we are not in institution में कोई उसमें चार्जेस नहीं है. Best time to apply for abroad MBBS, you could start preparing for, because you can start sort of working on it right now, and you can even block your seat if you want to put across. Any scholarship for studying abroad, it can be there depending upon your performance in the first year, depending upon your NEET score, depending upon your performance in the institution where you join it. There, up to $5,000 scholarship can be there depending upon your performance. Any other information anyone wants? Any other question? Thank you, everyone. Thank you so much. If there are no questions, I think let's get in touch with each other. Now my counselor will be in touch with you individually and try to answer all your questions and all your. Yeah, Tanishka, you asked about Mauritius. Yes, I think this is a very good choice, very good option, very good country. And the University of Mauritius and Anna Medical College, these are the two choices available there. And I think again as choice, because वहाँ पे जो है there are a lot of Indians. Basically Mauritius is more like an Indian country, and the cost is 20 to 21 lakhs, and within that you can plan your education. It's a beautiful country, beautiful place, and a lot of Indians over there, so environment is very well suited to the Indian students. So I think after this you can discuss with our people and choose that as an education center. Okay, friends, thank you so much. And let's be in touch. All the best for your NEET. Do well. And let's hope that we see you as doctors very soon. God bless you.